नमस्कार, मैं वैशाली विश्व हिंदू परिषद थाईलैंड की नो योर ट्रेडिशन की हमारे इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज और इस विषय को पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ है मिस्टर अरविंद पात्रा जी। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। जय भवानी, जय शिवाजी, यह नारा सुनते ही हमारे सामने महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा आ जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह साल शिवाजी महाराज की जयंती हम 19 फरवरी यानी कि आज मना रहे हैं। भारत देश में शायद ही ऐसा कोई हो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं जानता होगा। महाराज ने स्वराज्य के निर्माण के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। ऐसे हमारे देवता समान छत्रपति को मेरा शत नमन है। इस विषय को आगे ले जाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अजीत वामन अपटे जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सभी को। डॉक्टर अजीत अपटे पुणे से हैं और डॉक्टर अजीत जी हैज बीन अवॉर्डेड विथ PhD on the subject of Chhatrapati Shivaji Maharaj management style. He has more than 35 years experience in personal management, administration and public relations. He also has teaching experience at Sinhagad Institute of Management, Pune. As a visiting faculty in HR and marketing on various subjects like Shivaji Maharaj and modern management, investment and career guidance. He has 3 books published in Marathi language. नमस्ते अजीत जी, आपका स्वागत है। और नमस्ते सभी को, हार्दिक शुभकामनाएं इस दिन की। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजीत जी, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे कुछ सवाल इसमें से हमारे बच्चों ने जो VHP के मेंबर्स है, थोड़े नॉन मेंबर्स है, उन्होंने पूछे हैं। तो मैं आज का पहला सवाल मेरा पूछ लेती हूँ। Why is Chhatrapati Maharaj known as a great leader? Please tell us something about what made him revered by all our country and by some of other countries. हाँ, शिवाजी महाराज को ग्रेट या ग्रेटेस्ट क्यों बोला जाता है, इसका एक 2-4 कारण है, वजह है। वो तो एक ऐसा है कि he was an exemplary means general, military general. Then second one, he was a very great administrator. He was the greatest fort architect in the world. Then he had a very good moral character, and he was a nation builder. Means Mr. Balkrishna, or rather Principal Balkrishna, he was a Punjabi and he was staying in Kolhapur. He had commented upon the Marathi people during Shivaji Maharaj's era or his rule that he converted lambs into lions. So he was also a human builder, human promoter, and that's why in the end nation builder, because he is also termed as the father of Indian Navy. So many facets of his life, 100 or more. That's why he is termed as the greatest. Okay. तो इससे ही हमारे क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था, हमारे बच्चों ने पूछे हैं। इसमें कैस्पर मेहता है, उसने पूछा है कि when was Shivaji Maharaj born, then who were his parents and who was Shivaji's guru? कैस्पर जी, हेलो, नमस्ते। आपने 3 प्रश्न पूछे, उसके जवाब इसके अनुसार हैं। तो शिवाजी was born on 19th of February 1630 on a hill fort in Pune district. The name of the fort is Shivneri. It is still there in Pune district. So 19th February 1630. That is the birth date. हाँ, पहले उसके बाद में कोई विवाद थे, लेकिन अभी ये सर्वमान्य चीज है कि यही उनकी बर्थ डेट थी। तो उनके माता पिता जी का नाम क्या था? तो वो तो यानी कि शहाजी राजे भोसले was his father, and Jizabai Sahib. We always call in Marathi as Jizabai Sahib, and you know them as Jizau or Jizabai. So
That is the name of his parents. And third question was what? Who was Shivaji Maharaj's guru? हाँ, Shivaji Maharaj's guru. There were means spiritual gurus. There were many, about 16. But the political guru, he had no political guru. But his father and mother, and particularly or in particular Jizabai Jizau Sahib, she was the biggest motivator in his life. But he was a well self-taught man, and he learned everything, almost majority of the things, from the situation in which he was for a brief period of 50 years. Means he lived only for 50 years. लेकिन जो परिस्थिति जो है वो उनकी सबसे बड़ी गुरु थी, ऐसा हमको मानना पड़ेगा. किसी एक आदमी को इनका मैंने कि राजकीय गुरु या पॉलिटिकल गुरु वो हम नहीं मान सकते. तो आई होप कैस्पर आपको आपका सवाल के जवाब मिल गए हैं. अभी हमारे पास और एक सवाल है जो देवाश संदीप पटेल जी ने पूछा है. छोटे बच्चे हैं ये, उन्होंने पूछा है, वही पूछा है, हाउ वाज शिवाजी महाराज इन्फ्लुएंस एंड बाय हु. तो एक्चुअली आपने इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप. हाँ, बिल्कुल दे देंगे. माता पिता का उनपे बहुत ज्यादा प्रभाव था, और उनमें भी her mother had a very dominating effect on him, and they had a very good bonding amongst themselves. That throughout his life, means about 44 years of his life, his mother was with him, always motivating him, making him more and more stronger in weak situations or difficult situations. And she could be termed as the mentor of Chhatrapati Shivaji Maharaj. तो मेरे ख्याल से देवाश आपको आपका जवाब मिल गया होगा. ओवर टू यू अतुल जी. जी सर, हमारे साथ और भी एक नन्हे विश्व हिंदू परिषद के मेंबर हैं जिनका नाम है मिस्टर राघव खंडेलवाल. मिस्टर तो नहीं, मास्टर राघव खंडेलवाल. तो उन्होंने भी बढ़िया एक सवाल पूछा था जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं. तो उनका क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज किस वंश को बिलोंग करते हैं. हाँ, बहुत अच्छा सवाल है राघव जी. लेकिन his heritage or from where they came means the Bhoslas, they are one of the branches of the Guhilot वंश. यानी कि राजपूतों का जो गुहिलत वंश है, जो उदयपुर या महाराणा प्रताप से ताल्लुक रखता था, उनके वंश से शिवाजी महाराज, यानी कि उनके जो पूर्वज थे वो राजस्थान से माइग्रेट करके महाराष्ट्र में आए थे, और इसीलिए वो क्षत्रिय थे. और इसीलिए शिवाजी महाराज ने भी जो टाइटल लिया, खुद जो टाइटल लिया है, वो ऐसा है कि क्षत्रिय कुलावतंस. इसका मतलब ऐसा होता है कि क्षत्रिय कुल का भूषण. इसलिए वो एक क्षत्रिय कुल के थे और डिसेंडेंट फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ उदयपुर. मेवाड़ इज वेरी पॉपुलरली नोन एज मेवाड़, एंड द मोस्ट पॉपुलर फिगर इज महाराणा प्रताप. तो सर, उनका एक और भी क्वेश्चन है हाँ, बिल्कुल पूछे. जिसमें वो पूछते हैं कि छत्रपति का असल मीनिंग क्या है और शिवाजी महाराज को छत्रपति क्यों कहा जाता है. हाँ, छत्रपति का मीनिंग ऐसा है कि जो हु इज द सॉवरेन किंग एंड द किंगशिप अटेन्ड बाय हिमसेल्फ, मैंने के स्ट्रगल करके हो या कैसा भी हो, और सिर पे छत्र धारण करने वाला, इसके लिए वो छत्रपति बोले जाते थे. और रियल सेंस उसका था, या जो मीनिंग था या महत्व था, यानी कि इंपॉर्टेंस तो था कि ही वॉज ए सॉवरेन किंग. ऐसे किसी को भी आप छत्रपति नहीं बोल सकते, यानी कि वो राज्याभिषेक होना मांगता है, उसकी सॉवरेनिटी होनी मांगती है, बाकी उसके क्रेडेंशियल्स, प्रूव्ड क्रेडेंशियल्स सभी चाहिए, तभी वो बात छत्रपति बन जाता है. यानी कि छत्र जो है कि वो सिंबॉलिक है, लेकिन वो ऐसे ऐरा गहरा कोई छत्रपति हो नहीं सकता. यानी कि राजे तो बहुत हो सकते हैं, या थे भी उस जमाने में, उनके पहले भी बाद में भी, लेकिन छत्रपति बहुत थोड़े बने कि जिनका राज्याभिषेक हुआ और बाद में उनको धर्म और ये अपने सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार उनको जो एक अधिकार प्राप्त हुआ कि सर पे छत्र धारण करने का, उसी को ही छत्रपति बोलते हैं. एंड सॉवरेनिटी इज द बेसिक टेस्ट ऑफ इट. सर बहुत बढ़िया. तो मुझे लग रहा है राघव जी को उनके सवाल का जवाब मिल चुका होगा, तो बढ़िया था सर. तो एक और क्वेश्चन है, तो ये हमारे तरफ से है सर. तो शिवाजी के टाइम पे और या उनसे पहले जो मराठा लोग थे वो मतलब
कैसे यूनाइटेड थे या उनको यूनाइटेड करना पड़ा राष्ट्र निर्माण के लिए, जो वो सब जो था उनका, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, ये तो सरल सीधी बात है, यानी कि वो तो क्या बोलते हैं कि वो ऑल वेयर स्कैटर्ड, यानी कि उनमें एकता बिल्कुल नहीं थी और वो अलग अलग सुल्तान शाही में बटे हुए थे, यानी कि कोई निजाम शाही की तरफ से लड़ रहे थे, कोई आदिल शाही की तरफ से, कोई कुतुब शाही की तरफ से, इमाद शाही, मोगल, यानी कि बहुत सारे लोगों में ये जो मराठा थे, यानी कि जो बहुत अच्छे लड़ाकू लोग थे, ईमानदार थे, यानी कि अपनी तरकीब अपनी सोच वाले थे, लेकिन फिर भी ऐसा था कि वो बिखरे हुए थे, उनमें कभी एकता नहीं थी। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में भी और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही आपने को देखने को मिलता है, यानी कि शिवाजी महाराज के पीछे 300 बरस जाओ, 500 बरस जाओ, कहीं भी आप जाओ, 1000, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जब से आया था 712 में, तो वहां से आपको ये दिखता है कि अपने में एकजुट नहीं थी, एकता नहीं थी, यानी कि वर्ण जाति इसमें हम बटे थे, जाति जाति में भी सब कास्ट ऐसे जो होते हैं उसमें भी बटे थे, और वो रोटी बेटी के व्यवहार नहीं होते थे। इसके वजह से ये स्कैटर्ड नेचर जो था, इसकी वजह से बाकी सभी चीजें होने के बावजूद, यानी कि अकलमंदी थी, शौर्य था, धैर्य था, चातुर्य था, यानी कि एक बहुत बड़ी परंपरा, यानी कि सनातन जो संस्कृति है वो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्कृति है। इसका मुकाबला, उस मुकाबले में तो कोई सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता नहीं टिक सकती, इतनी वो पुरानी है। लेकिन कभी कभी ऐसे दोष उसमें आ जाते हैं, तो ये मराठा समाज या हिंदू समाज में ही थे, लेकिन आपने पर्टिकुलरली मराठा समाज के बारे में पूछा है, तो डेफिनेटली दे वर स्कैटर्ड एंड दे डिडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ यूनिटी अमंग देमसेल्व्स। बढ़िया सर। तो अभी आगे चलते हैं। एक और सवाल आया है मिस्टर विवान पाटकर, ये भी हमारे विवान पाटकर जी, ये भी हमारे नन्हे मेंबर हैं। तो उनका सवाल, हाय विवान। तो उनका सवाल सर ये है, शिवाजी का बचपन कैसे बीता था, ये सर बताइए। हाँ, शिवाजी's चाइल्डहुड वाज ए टर्बुलेंट चाइल्डहुड, यानी कि वो वैसा जैसे कि हम जीते हैं, यानी कि लाड़ प्यार में, हाँ उनको भी बहुत सारे लोगों का लाड़ प्यार मिला, लेकिन द पॉलिटिकल सिचुएशन अराउंड हिम वाज वेरी डिस्टर्बिंग। और वो यानी कि उनके जो पिता थे वो भी इधर उधर संघर्ष करते रहते थे। वो शिवनेरी पे किले पे वो थे, लेकिन वहां भी परिस्थिति बिल्कुल यानी कि मुश्किल ही थी। यानी कि जब वो जिजाऊ साहब के पेट में थे, वहीं निजाम शाह ने दगाबाजी से उनको जो दादा थे लखुजी जादव राव और उनके मामा वगैरह थे, 3-4 लोगों को दगे से मार डाला था, भरे आम यानी कि सरेआम दरबार में मारा था। और ये बहुत लड़ाई झगड़ों का माहौल था। और बाकी भी एक अकाल पड़ा था, यानी कि सूखा अकाल भी महाराष्ट्र में पड़ा था। तो ये जन्म काल या 5-6 बरस तक होने तक ये सभी चीजें जो थी वो बहुत ही बुरी थी। और ये इट वॉज ए वेरी टफ एंड टेस्टिंग टाइम फॉर एनीवन, एंड पर्टिकुलरली शिवाजी महाराज तो छोटे यानी कि नन्हे मुन्ने ही थे, या 6 बरस तक तो आदमी वैसे ही प्राइमरी स्कूल में ही जाता है, ज्यादा कुछ बड़ा भी नहीं होता। और उस जमाने की कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बुरी परिस्थिति में वो थे, यानी कि जो उनका पर्यावरण या एटमॉस्फेयर इर्द गिर्द जो उनके था वो बहुत बुरा था। लेकिन उनकी माँ उनके साथ थी, और उनकी माँ की सहायता, उनके पिताजी जो शहाजी राजे थे वो भी बड़े जबरदस्त सरदार थे, यानी कि वो भी स्वराज्य की कोशिश 2 बार करके चुके थे। और इस महाराष्ट्र में उनको बहुत बड़ा सम्मान था, उनकी बहुत बड़ी ताकत भी थी, यानी कि 15-20 हजार की सेना भी वो इकट्ठा कर सकते थे, इतने बड़े सरदार थे वो। लेकिन द टाइम वाज वेरी टफ एंड इट वाज वेरी टफ टाइम। अच्छा सर, हमको भी नहीं पता था, आपने जो बताया हम बस खाली किताबों में पढ़े थे, और सामने सुन के बड़ा अच्छा लगा सर। यस यस, बिल्कुल, रियली टेस्टिंग टाइम। जी सर, तो विवान जी का ये सवाल था। अभी अगला सवाल जो है हमारे मास्टर दैविक संदीप पटेल, इनका भी सवाल है कि शिवाजी महाराज के माताजी का उनके जीवन में, उनके लाइफ के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहा है। तो यानी शी वाज द सेंट्रल पावर फिगर इन हिज लाइफ, यानी कि हमेशा उनको जो मोटिवेशन मिली वो जिजाऊ साहब से मिली। यानी कि बहुत कठिन कठिन प्रसंगों में भी यानी कि जिजाऊ साहब ने महाराज को बहुत अच्छे मशवरे यानी कि एडवाइस दे दिए। उनकी यानी कि जो बाजू है वो हमेशा उन्होंने संभाली, एंड शी वाज द की फिगर इन हिज लाइफ।
और जो भी करना, यानी कि कोई भी माता जो कर सकती है अपने बच्चे के लिए, इसका भी एक जिजाऊ साहिबा एक बहुत अच्छा यानी कि आदर्श उदाहरण है। यानी कि जिंदगी भर तो उन्होंने प्रेरणा दी, मार्गदर्शन किया शिवाजी महाराज का। लेकिन आपको एक भी चीज मैं बताता हूँ कि जब वो चल बसी, यानी कि उनका एक प्रीवी पर्स, यानी कि उनका एक प्राइवेट कोई इनकम भी था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी जब उनका इंतकाल हो गया, यानी कि वो 76 ईयर्स ओल्ड, जस्ट आफ्टर 11 days आफ्टर द कोरोनेशन सेरेमनी, तो जिजाऊ साहब चल बसी। लेकिन फिर भी यानी कि उनके देहांत के बाद भी वो शिवाजी महाराज के काम कैसे आई कि उन्होंने करीबन 1 करोड़ रुपया यानी कि एज ए रिजर्व्स उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए रखे थे। यानी कि 25 लाख होन, एंड 1 होन इक्वल टू 3.75 rupees or almost 4 rupees. So that was the savings made by Jizau Sahiba for his beloved son, or the only surviving son of her, because she had got 6 children, but all were either killed or they were, देखिए 55 में ही वो चले गए। लेकिन एक ही शिवाजी महाराज बचे उनके साथ, और उनके लिए उन्होंने इतना, ये क्या जाओ आप मराठी में बोलते हैं या हिंदी में भी बोलते हैं कि श्री शिल्लक, what she left for Shivaji Maharaj, almost 1 crore of rupees of that time. आज भी 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम, यानी कि उनका भी फाइनेंशियल एक्विपमेंट कितना है वो हमको पता चलता है। और वो बहुत, यानी कि क्या बोलते हैं कि वो साहस वाली थी, धैर्यवान थी, मोटिवेटिंग फिगर थी, और बहुत बहुत कठिन परिस्थिति में उन्होंने खुद भी नेतृत्व किया है। यानी कई बार उन्होंने ये भी तैयारी दिखा थी कि अगर शिवा यानी कि शिवाजी महाराज अगर खतरे में है तो मैं युद्ध के लिए भी जाने को तैयार, यानी कि वो तलवार लेके भी तैयार रहती थी। हाँ, बाकी शिवाजी महाराज के जो सब साथी थे उन्होंने कभी उनको अलाउ नहीं किया, वो खुद तो उसमें मुहिम पे चले गए, कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। लेकिन एक क्या बोलते हैं कि कैरेक्टर कैसा होता है, यानी कि टफ नेचर ऑफ हर, that has been visualized in many times, dozens of times we can do that during testing times. She यानी कि she stood like a rock of Gibraltar behind Chhatrapati Shivaji Maharaj. So she was the main. सर ऐसे महान आत्मा को तो हम सदैव प्रणाम करेंगे सर, बिल्कुल आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो इसमें तो मैं मास्टर दैविक संदीप पटेल का थैंक यू कहूंगा कि उनके क्वेश्चन की वजह से हमको भी कितना ज्ञान मिल रहा है सर। हाँ, तो है, यानी कि क्वेश्चन पूछने के पहले खुद का भी कोई संज्ञान होना जरूरी होता है। जितना अच्छा है उतने प्रश्न भी अच्छे निकलते हैं, तो उनको भी धन्यवाद करें हम। आगे जाए, चलिए आगे सर, मास्टर देवर संदीप पटेल, तो उनका क्वेश्चन है कि शिवाजी ने तो बहुत युद्ध लड़े अपने लाइफ में, तो कौन सा ऐसा युद्ध है जो सबसे खास रहा है उनके लाइफ में, जो सबसे खास माना जाता है? हाँ, सबसे खास माना जाए तो वो तो अफजल खान की लड़ाई हमको बोलना पड़ेगा। ये लड़ाइयाँ तो बहुत है, यानी कि जिसमें खुद वो थे, वो तो अफजल खान की लड़ाई, क्योंकि एक तो खाली 1 to 1 जो उनका संग्राम हो गया उससे वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आप कल्पना करिए कि 30-35 किलोमीटर की रेडियस में ये लड़ाई हुई और जगह जगह ये लड़ाई हुई, यानी कि वाई से लेके प्रतापगढ़ तक ये लड़ाई, यानी कि बैटलफील्ड was having at least 35 kilometers radius, and बहुत जगह ये लड़ाई हुई। और एक दिन में आप कल्पना कर सकते हैं कि 5000 लोग उसमें मारे गए, यानी कि 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से शाम 6-7 तक, यानी कि 5000 लोग मारे गए और सैकड़ों जख्मी भी हो गए। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं आप कि शिवाजी महाराज ने खुद भी अफजल खान को मार डाला। वो तो एकदम जैसे, यानी कि आज वो खली बिली दिखता है ना, वो वैसे अफजल खान थे, और ऐसे आदमी को खुद 1 to 1 फाइट होकर उसको मारना, ये भी एक बड़ी शौर्य की बात थी। और जो प्लानिंग था उनका, यानी कि लड़ाई का सब जो प्लानिंग था वो बेमिसाल था, और ये बहुत बड़ी लड़ाई, 5000 लोग मारे गए, खुद अफजल खान मारा गया, उनके सभी सेना परास्त हो गई, यानी कि दैट वाज द एंटी क्लाइमैक्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीबॉडी। देन क्योंकि पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, यानी कि हिंदुस्तान इस तरह से देख रहा था इस लड़ाई के ओर से कि ये कब अफजल खान जाता है और कब वो शिवाजी महाराज को या तो मार डालेगा या कैद करके बीजापुर ले जाएगा और वहां उनको मारा जाएगा। लेकिन एकदम उल्टा हुआ कि 1-2 मिनट की फाइट में एकदम से उल्टा पुल्टा हो गया, और शिवाजी महाराज का नाम
इस लड़ाई के बाद में पूरी हिंदुस्तान में फैल गई। यानी कि इन वन नाइट और इन वन डे और फॉर दैट 1 or 2 minutes, देन आफ्टरवर्ड्स ही बिकेम ए नेशनल फिगर। सो दैट इज द पहली लड़ाई है कि शिवाजी महाराज को यानी कि ही गॉट द रिकॉग्निशन फ्रॉम ऑल हिज फोर्स, फ्रेंड्स एंड एवरीवन फ्रॉम इंडिया। बहुत अच्छी तरह से आप हमारे बच्चों के सवालों का जवाब दे रहे हैं अजीत जी। और एक सवाल है उत्कर्षा दौलत भोसले जी का। वो जानना चाहती है कि जैसे औरतों के साथ हमेशा ही अत्याचार होते आए हैं, तो उनका पूछना यह है कि मुगलों के हारने के बाद उनकी माताओं को और बहनों को महाराज ने कैसे वापस लौटाया? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन उत्कर्षा। और इत्तेफाक से आप भी भोसले हैं, तो और भी भोसलों के बारे में, भोसलों से प्रश्न पूछा जाना और मुझको उत्तर देने का सौभाग्य मिलना, ये भी एक बहुत अच्छी बात हुई है। और ये अहम चीज है कि जिसको हम स्त्री दाक्षिण्य बोलते हैं, उनकी जीती जागती मिसाल थे शिवाजी महाराज। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से और अपने राज्य की तरफ से भी यानी कि इतने कड़े नियम बनाए थे। और कोई भी हो, यानी कि औरत, ऐसा नहीं है कि मराठी या हिंदू औरत, कौन से भी जाति धर्म की औरत हो, उनके प्रति उनका बहुत अच्छा रवैया रहता था। वो उनको माता के समान मानते थे और उन्होंने कभी एक भी ऐसी घटना होने नहीं दी। और यानी कि नियम भी उन्होंने इतने सख्त बनाए थे कि, और कभी भी उन्होंने किसी और यानी कि गैर औरत के तरफ कभी भी यानी कि तिरछी नजर से नहीं देखा, और बाकी लोगों को भी उन्होंने देखने से मना कर दिया। यानी कि व्हाट्स द स्पेशलिटी ऑफ शिवाजी महाराज, ऐसा नहीं है कि वो खुद बहुत अच्छे थे, लेकिन हजारों लाखों लोगों को उन्होंने वही रास्ता दिखाया जो आदर्श रास्ता था, जो आइडियल्स थे उनके। उन्होंने उनका एक जो फैलाव है, वो सभी एक जमाने में एक महाराष्ट्र जैसे मुल्क में, महाराष्ट्र और कर्नाटक यानी कि 2 स्टेट्स में आज जो हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो ये दोनों में जहां जहां उनका राज था, तो वहां इतने स्ट्रिक्ट रूल्स थे और एक मॉरलिटी और मॉरल प्रिंसिपल्स का वो इतना ख्याल रखते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी कि सभी को मालूम था कि एक भी अपना आचरण में या कोई बर्ताव में कोई गलती हो गई तो या तो हमारी आंखें निकाल दी जाएगी, या हाथ पैर काट दिए जाएंगे, या मार दिए जाएंगे। यानी कि वो बहुत सख्ती से पेश आते थे। यानी कि ही वाज वेरी मच टॉलरेंट। एंड स्त्री दाक्षिण्य की तो शी इज और ही इज द बेस्ट एग्जांपल अक्रॉस द ग्लोब। इतना ये किसी यानी कि औरत के कैरेक्टर के बारे में, उनके सम्मान के बारे में इतना सख्त अनुशासन रखने वाले वो एकमात्र किंग हमको दिखते हैं। और पूरी जिंदगी में आप देखिए कि एक भी ऐसा है नहीं कि वो टॉलरेट किया उन्होंने। जो भी कई इंसिडेंट्स यही वही 1-2 हुए, तो या तो उन्होंने उन लोगों की आंखें निकाल दी या उनको मार दी। तो ये सभी को मालूम था कि शिवाजी के राज में, शिवाजी के होते हुए ये बिल्कुल नामुमकिन है, और ये आत्महत्या का दूसरा नाम। तो इतना सख्ती से वो पेश आए और पूरी जिंदगी ऐसा रखना है, यानी कि 10 बरस से, यानी कि एक ऐसे ही बलात्कारी को उन्होंने शिक्षा सुनाई थी। मैं नाम वगैरह नहीं ले लूंगा क्योंकि वो प्रिंसिपली व्हाट वाज दिस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उनकी उम्र 15 बरस भी नहीं थी। यानी कि उनको हाथ पैर तोड़ने की यानी उन्होंने ये पनिशमेंट दी थी कि कोई किसी ने, यानी कि वैसे तो वो रेप भी नहीं था, लेकिन एक गलत व्यवहार किया था, तो उसकी भी शिक्षा उन्होंने इतनी दी कि हाथ पैर, उसको दोनों हाथ और दोनों पैर उन्होंने काट दिए थे। और तब उनकी उम्र 15 से भी कम थी। यानी कि आप देखिए कि आज के जमाने का, यानी कि मॉडर्न जमाने के कोई भी लड़का हो, लड़की हो, किसी देश, भाषा, जाति का हो, तो ये इतना इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। और उस टाइम में उन्होंने ये डिसीजन लिया है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी की है। ऐसा नहीं है कि किया, बोल दिया, छोड़ दिया, नहीं। हर चीज को वो एक अंजाम देते थे। ये शिव चरित्र की और विशेषता है। और ये स्त्री दाक्षिण्य के बारे में वो तो बहुत ही सख्त थे, और उन्होंने कभी किसी को कोई रियायत नहीं। एक्सेप्शनल कैरेक्टर एंड एक्सेप्शनल करियर। तो इसका मतलब है शिवाजी महाराज के राज्य में मुगलों ने जिन्होंने महाराज को इतना टॉर्चर किया था, इतना सब किया था, उसके बाद भी उनकी औरतों का उन्होंने सम्मान किया। ये तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए।
और ये तो यानी कि टेस्टिमनी औरंगजेब ने उनके मृत्यु के बाद बोला था कि शत्रुओं की औरतों के प्रति भी इतना सम्मान रखने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आज चल बसा। और औरंगजेब ने उस टाइम में जब उनको ये खबर मिली तो उन्होंने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया। यानी कि मॉरल कैरेक्टर का जो एक परिणाम होता है, यानी कि बहुत सारे लोग आजकल ऐसा बोलते हैं कि अरे सक्सेस के लिए कुछ भी करो यार, कैरेक्टर का क्या होता है। और मॉरल कैरेक्टर तो आज ऐसा लोग बोलते हैं कि इतने मॉडर्न जमाने में भी आज बोलते हैं कि अरे उसकी कोई अहमियत नहीं होती, सक्सेस इज द ओनली थिंग। बट पहले मॉरल कैरेक्टर, बाद में सक्सेस। और ये करते हुए भी शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा यानी कि सक्सेस मिला है उनकी जिंदगी में, तो आज भी एक मिसाल है। और आप देखिए ना, 350 बरस के बाद भी आप थाईलैंड में, मैं हिंदुस्तान में हूँ, आप बात किस पे कर रहे हैं? तो शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ हिज मॉरल कैरेक्टर। अगदी खरं आहे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपने थोड़ा सा उसका आंसर दे दिया है, उत्कर्षा का ही है कि महाराज की मौत कैसे और कब हुई। हाँ, तो ये बहुत सारे इसमें गलत फहमियां भी है, लोग अफवाहों का भी शिकार होते हैं। कोई गुड़गी रोग बताता है, तो कोई एक साजिश थी ऐसा सोचते हैं या बताते भी है। लेकिन शिवाजी महाराज की जो मृत्यु हुई, उस रोग का नाम भी हमको मालूम है। उसका नाम था इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स। उससे क्या होता है कि कोई भी, आज अभी तो हम कोरोना की छांव में जी रहे हैं, तो ये एक वायरस होता है। तो ये इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स में भी एक वायरस जाता है, और वो कहाँ जाता है? तो अपने पेट में वो जाता है और वहां खराबी वो करना शुरू कर देता है, और वो सब इंटेस्टाइनल सिस्टम डैमेज करते जाता है। और आखिर में ऐसा होता है यानी कि उससे बुखार आता है। हमेशा हमको मालूम है कि वायरस है तो बुखार आता ही है, किस ना यानी कि थोड़ा हो ज्यादा हो, वो अलग अलग अपने अपने हेल्थ पे। लेकिन दूसरा ये, जहां इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स की बात है, तो वायरस पहले वो आपके पेट में जाता है, वो सब डाइजेशनल सिस्टम आपकी खराब करते चले जाता है, और बाद में ऐसा होता है कि वहां से ब्लड शुरू होता है, और वो ब्लड इतना बड़ा ज्यादा होता है कि आदमी बहुत वीक होता है, और वो उस पर कोई काबू पा नहीं सकता। और उस जमाने में कोई लैबोरेटरीज नहीं थी, कोई टेस्टिंग नहीं था, ऐसे आज के जमाने के जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन और वैसे वो कुछ उस पर व्यवस्था नहीं थी। और वो किसको होता है, यानी कि एक लॉजिकल भी हम समझ सकते हैं। तो जो आदमी जानवरों के सान्निध्य में रहते हैं, उनको ये जल्दी पकड़ लेता है इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स। तो ये शिवाजी महाराज को हुआ था। और जाहिर है, अब भी सभी मालूम होता है कि शिवाजी महाराज ने सभी जिंदगी भर क्या इस्तेमाल किया, तो घोड़ा इस्तेमाल किया। वो छावनी में रहते थे, तो वहां बहुत सारे जानवर होते थे, घोड़े, बैल, खेचर या खच्चर जिसको बोलते हैं। तो ये सभी हाथी उनके सेना में कभी नहीं होते थे। लेकिन इसकी वजह से कारण क्या है कि ये जानवरों के सानिध्य में रहते थे, और ये एंथ्रैक्स हो गया। और ये सभी यानी कि आपको देखना है या ज्यादा पढ़ना है, तो आप पोर्तुगीज रिकॉर्ड्स में पढ़े, तो ये लिस्बन में आज भी डॉक्यूमेंट्स उसके हैं, गोवा में भी है, तो आपको मिल सकते हैं। और ये एंथ्रैक्स के बारे में आपको भी पता चल जाएगा, या मेडिकल जर्नल में भी आप देखें, तो ये इंटेस्टाइनल एंथ्रैक्स यानी कि क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, ये भी आप जान सकते हैं। तो उत्कर्षा, आपको आपके सवाल सच में अच्छे थे, सब बच्चों के सवाल अच्छे हैं, और आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अरविंद जी सर, अगला सवाल मेरे तरफ से सर। स्वागत स्वागत। शिवाजी महाराज के एम्बिशंस क्या थे? हाँ, एम्बिशंस तो ऐसी थी कि उन्होंने एक ही बार बोला था, यानी कि उनके अधिकारी ने एक फ्रेंच जो यानी कि क्या बोलते हैं ट्रैवलर था, वो डॉक्टर भी था और ट्रैवलर भी था, और तो व्यापार भी वो लोग करते थे, यानी कि मल्टी डायमेंशनल फिगर थी। तो उसको ये ऑफिसर ने उनको बोला था कि तंजावर से पेशावर, यानी कि तंजावर आज है तमिलनाडु में, और पेशावर है आज के पाकिस्तान। तो ये शिवाजी महाराज ने बोला था कि ये सब जो भूमि है वो अपनी है, और यहाँ सभी जो धर्म स्थान वगैरह है वो हमको छुड़ाने हैं, वो पूरा मुल्क मुझे आजाद करना है। और मैंने जो अभी तलवार उठाई है मेरी, तो जब तक मैं दिल्ली पे राज नहीं करता तब तक मैं उसको म्यान नहीं करूंगा, यानी कि वो उसको मैं विश्राम नहीं दूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी, ये उनकी महत्वाकांक्षा थी।
और एक और क्वेश्चन उसके बाद हम चलेंगे। तो शिवाजी महाराज का जो टाइम था, मतलब आज से 350-400 साल पहले, उस टाइम का जो भारतवर्ष था और आज के टाइम का जो भारतवर्ष है, तो शिवाजी के ऐसे कौन से क्वालिटीज थे जो आज के भारतवर्ष में मतलब उनका कॉमन हो सकता है, उनका कॉमन रहेगा? नहीं यानी कि कॉमन नहीं है ज्यादा कुछ, इसके वास्ते तो शिवाजी पे बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि आइडियल्स वो उनके साथ उनकी तरफ से ही आ सकते हैं। आज के जो भी रूलर है, ठीक है, अपने अपने हिसाब से वो अच्छे होते हैं, पर हमें तो किसी की आलोचना करनी नहीं है, किसी पक्ष के यानी कि उनके बाजू से या उनके विरुद्ध कुछ बात नहीं करनी है। लेकिन फिर भी कैसा है कि जो एक मॉरल कैरेक्टर शिवाजी महाराज में दिखता है हमें, दूसरा जो उनका है कि एग्जेम्पलरी स्किल्स, यानी कि मिलिट्री स्किल्स, स्ट्रेटेजिक स्किल्स, इनोवेशन, इन्वेंशन, और ऊपर से जो एक स्वराज्य की कल्पना उनके मन में थी, यानी कि द बेस्ट एवर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही हैड, एंड ही हैड वेरी गुड सिस्टम्स। यानी कि जो पहले अपना जो इतिहास लिखा है, मराठा को इतिहास जो लिखा है, वो कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था, उनका नाम था जेम्स कनिंगहैम ग्रैंड टफ, पॉपुलरली इज नोन एज ग्रैंड टफ। तो उन्होंने ऐसे लिखा था कि उन्होंने, यानी कि शिवाजी महाराज ने कितना राज, यानी कि कितना था, तो एक 9-10 जिले आज के, इतना ही उनका राज था, यानी कि बहुत छोटा था। यानी कि मुगलों के कंपैरिजन में आप देखें तो 5%, 7% इतना ही उनका राज था। लेकिन ग्रैंड टफ ने बहुत एक अच्छी बात बोली है कि जो मोटिवेशन जो अपने लोगों में उन्होंने पैदा किया, यानी कि वो एक तरफ से इंजेक्ट किया उसमें, ही मोटिवेटेड हिज पीपल एंड ही डेवलप्ड वेरी नाइस सिस्टम्स, सो दैट सिस्टम्स दोज डिफीटेड औरंगजेब। यानी कि औरंगजेब कभी मुगलों को मोटिवेट नहीं कर सका जितना शिवाजी महाराज ने किया, और मुगलों के सिस्टम्स कभी इतने अच्छे नहीं थे कि वो मराठाओं की, यानी कि शिवाजी महाराज की तुलना में खड़े हो सके या टिक पाए। तो ये उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और आज हमको जो दिखता है, तो कहीं ना कहीं हर एक के राज्य में हमको दिखता है, मैंने कि केंद्र सेंट्रल लेवल पे भी दिखता है, स्टेट लेवल पे भी दिखता है। लेकिन एक जो परफेक्ट पिक्चर जो शिवाजी महाराज तैयार करते हैं, तो वो हमको नहीं दिखता। यानी कि अभी कोई पॉलिटिकल लीडर हो तो उसके मिलिट्री स्किल्स कुछ नहीं होते, क्योंकि एक डिवीजन हो गए। यानी कि सभी गुणों का जो एक सम्मिलन हमको शिवाजी महाराज में दिखता है कि अरे वो सभी, यानी कि जो फॉरेनर्स उनके जमाने में आए थे, बाद में भी आए थे, उन्होंने सभी ने बोला है कि अरे एक आदमी में इतने सद्गुण, यानी कि वर्च्यूज, वेरी गुड वर्च्यूज, हाउ दे कुड यूनाइट इन वन पर्सन, दैट वाज ऑलवेज द मैटर ऑफ एस्टोनिशमेंट। और क्या बोलते हैं कि दे वर वेरी डिस्टर्ब कि अरे इस आदमी से मुकाबला कैसे करें। मिलिट्री की है तो वो भी स्किल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव बोले तो वो अच्छे सिस्टम्स भी हैं, पैसों के बारे में बोले तो वो भी अच्छा, यानी कि धन इकट्ठा करता है, इस्तेमाल भी अच्छा करता है, इन्वेंशन भी करता है, इनोवेशन भी करता है। और ये क्या बोलते हैं कि जैसे कि लड़ाकू जहाज बनाता है, वैसे व्यापारी जहाज भी बनाता है। तो ये समुन्द्र में भी बहुत ताकतवान है, जमीन पे भी है, किलों पे भी है, जमीन पे भी है, लेकिन खुले मैदान भी है। इससे लड़े तो कैसे लड़े और कहाँ लड़े, ये तो बहुत समस्या हो गई थी उनको। यानी कि आज के जमाने में हमको मालूम नहीं होता, लेकिन कम से कम 9 शत्रु थे उनके, कम से कम। और पूरी जिंदगी, यानी कि 15 से लेके 50 तक, हर दिन उनकी जान को खतरा रहता। लेकिन फिर भी जो उन्होंने काम करके दिखाया, वो सभी, यानी कि जो उनके दुश्मन थे, उनकी आंखें उन्होंने चकाचौंध करके रखी थी। यहाँ तक कि औरंगजेब को यहाँ उन्होंने, यानी कि मजबूर किया कि दक्कन में आए, और दक्कन में ही उन्होंने उनको दफना दिया अपने मृत्यु के बाद। यानी कि जो सिस्टम्स और मोटिवेशन उन्होंने मराठाओं में डाली थी, वो इतनी मजबूत थी कि 27 बरस लड़ने के बाद भी औरंगजेब मराठाओं को परास्त नहीं कर सका। वो ऐसा बोला था कि वो मराठाओं की कब्र खुदवाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन उसकी खुद की कब्र यहाँ खुदवा। यानी कि दिस वाज द पावर, दिस वाज द मोटिवेशन, दिस वाज द इमेजिनेशन। और एक जो बोलते हैं कि राजकीय प्रतिभा जो होती है, वो सर्वोत्तम उदाहरण उसका है, यानी कि सबसे बड़ी मिसाल है वो शिवाजी महाराज, कि अपने शत्रु को उन्होंने अपने मृत्यु के बाद में भी नहीं छोड़ा उसको अपने मृत्यु के बाद भी उनको मृत्यु दी, और यही इसी महाराष्ट्र के मुल्क में ग्रेटेस्ट सक्सेस। तो सर
मतलब शिवाजी महाराज के डेथ के टाइम मुगल रूलर कौन थे? औरंगजेब थे? औरंगजेब, बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे वैशाली जी। हाँ जी। अभी एक्चुअली शायद मेरे ख्याल से बच्चों के सवाल खत्म हो गए हैं, थोड़े अभी हम हमारे सवाल लेते हैं। अच्छा, सो ये है कि व्हाट डिड छत्रपति शिवाजी महाराज डू इन द फील्ड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन? या और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को यानी कि वो क्या बोलते हैं कि एक सिस्टम्स ओरिएंटेड अप्रोच एंड डोमिनेशन ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द मिलिट्री वन। यानी कि जो आज की सिस्टम, यानी कि आप कहीं भी देखो 350 बरस पहले, इसीलिए मैंने बोला कि प्रतिभा, यानी कि वो खाली इंटेलिजेंट आदमी नहीं थे। यानी कि क्या बोलते हैं कि हम बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि बुद्धि कहाँ से आती है? तो प्रतिभा से आती है। प्रतिभा कहाँ से आती है? तो वो प्रज्ञा से आती है। तो ये इतने प्रज्ञावान जो राज्यकर्ता शिवाजी महाराज जैसे होते हैं, तो ये एक अलग अपनी मिसाल बना लेते हैं। जैसा कि आप सोचिए, यानी कि शिवाजी महाराज ने कैसा रखा था कि उनके 8 मिनिस्टर्स में, यानी कि टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी, उनमें 8 में से 7 जो थे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी कि वो खुद बहुत बड़े लश्करी यानी कि सेनापति थे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी में केवल एक मिलिट्री सिस्टम वाला आदमी था, सेनापति, और बाकी 7 सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थे। यानी कि अहमियत देखो आप, यानी कि सभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि इंचार्ज जो था वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि पेशवा, उनको सबसे ज्यादा तनख्वाह थी। यानी कि उनको 15,000 होन यानी कि 60,000 रुपीज पर ईयर, दैट वाज हिज सैलरी एट दैट टाइम। यानी कि वो आज आप कंपेयर करेंगे तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को जितनी सैलरी मिलती है उस हिसाब से ये सैलरी आती है। हाँ, आज के पर्क्स वगैरह उस जमाने में नहीं थे, वो अलग बात है। यानी कि एप्पल टू एप्पल 100% कंपैरिजन नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यानी कि सेनापति को उन्होंने दिया था 12,000। यानी कि आप देखिए कि 25% मोर सैलरी फॉर द सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन। He was the in charge. He was allowed to interfere or may be involved in military activities, but the military general was strictly prohibited from entering into civil administration. ये आप देखिए, ये जो सिस्टम है वो आज आप अमेरिका में देखिए, स्वीडन में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए और अपने देश में देखिए कि वही सिस्टम चलती है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डोमिनेंट ओवर द मिलिट्री। एंड वेयर देयर इज नो वॉर लाइक सिचुएशन, मिलिट्री ने अपने बाराक में ही रहना चाहिए। जब तक उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी परमिशन नहीं देता, तब तक आज भी कैसा है, उसी सिस्टम से शिवाजी महाराज काम करते थे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के बगैर मिलिट्री जंग छेड़ नहीं सकती, जंग वो छोड़ नहीं सकती, और वो कोई एग्रीमेंट या जैसे कि बोला सलूक या संधि भी नहीं कर सकती। ये आप देखें, और इसी सिस्टम से आज भी इंडिया चलता है, अमेरिका भी चलती है, इंग्लैंड भी चलता है और ऑस्ट्रेलिया भी चलता है। लेकिन जो विचार होता है, जो प्रज्ञावान राज्यकर्ता होता है, उसका यहाँ दुनिया भर का एक प्रभाव हमको दिखता है। और ये सभी उन्होंने किया जो किंगशिप का जमाना था, यानी कि वो फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम जो थी उस जमाने में। ये आदमी बिल्कुल उल्टा सोचता है कि जग इस तरफ जा रहा है, यानी कि बुराई की तरफ जा रहा है, लेकिन ये अच्छाई की तरफ जा रहा है। और दिस इज एक्सेप्शनल थिंग, यानी कि 350 बरस पहले ये सिस्टम ढूंढ निकालना और उस पर अमल करना अपनी जिंदगी में, यानी कि कितनी जिंदगी भी उसके थे 50 बरस, उसमें भी 35 बरस, लेकिन ये उनके फॉर्मूले जो है, ये जो इनको फंडामेंटल्स जो है, वो आज भी आप देख सकते हैं ना। यानी कि जैसे जदुनाथ सरकार ने बताया था आपने कि उनके जो आइडियल्स थे वो आज भी एप्लीकेबल थे। यानी कि वो तो गए, लेकिन उनकी जो आइडियाज थी, उनके जो सिस्टम्स थे वो इतने अच्छे थे, यानी कि नींव इतनी तगड़ी थी, बड़ी थी कि आज भी कोई इसको हिला नहीं सकता। आज भी आप सोचिए ना कि भारत के बारे में सोचे, दुनिया के बारे में सोचा भी, अमेरिका इज द ओनली पुलिस ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो भी ऐसा नहीं करते ना कि जनरल को कोई वहां अहमियत नहीं है, वो उसको प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ता है, यानी कि उसके मर्जी के बगैर वो एक मिसाइल भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दिस इज द डोमिनेशन ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द मिलिट्री वन एंड इट रिड्यूसेस। और आप देखिए ना, दूसरा कंपैरिजन आप करिए तो भारत और पाकिस्तान, आज पाकिस्तान में मिलिट्री रूल है, यानी कि मिलिट्री कंट्रोल डेमोक्रेसी में पाकिस्तान रहता है। आज पाकिस्तान की हालत क्या है और हिंदुस्तान की हालत क्या है, क्योंकि ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व जो है और उसका जो
पूरे यानी कि कॉमनर को जो फायदा है उसका, यानी कि वो एक चैन की नींद ले सकता है, चैन की सांस ले सकता है, उसको कोई ऐसे वैसे कोई उसको आके धमकाता नहीं, कुछ यानी कि बोलते हैं ना कि बंदूक लेके उसको कोई कोई मजबूर नहीं करता। ये उसका बड़ा महत्व है। आज भी लोग यानी कि अनजाने में ऐसा बोलते हैं कि अरे वो डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो नहीं है। वो, हाँ, शिवाजी महाराज बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं थे, वो उस जमाने में था ही नहीं, लेकिन वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या, क्योंकि क्या है यानी कि उसके पीछे विचार क्या है, प्रज्ञा क्या है, वो आपको समझ में आती है कि लोगों का यानी कि आम आदमी का जो सुख होता है वो किस पे डिपेंड करता है। वो मिलिट्री पावर पे डिपेंड कभी नहीं करता, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जितनी इफिशियंट है उस पे ही करता है, क्योंकि आपकी 99% जिंदगी जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी है। और ये शिवाजी महाराज एक बहुत अच्छे, दुनिया के सबसे अच्छे मिलिट्री जनरल होने के बावजूद भी ये सोचते थे, खाली सोचते नहीं थे, वो काम करते थे। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था, यानी कि रहे ना रहे हम, लेकिन बाद में भी सिस्टम अगर अच्छी है तो वो चलती है। आदमी आता है चला जाता है, लेकिन सिस्टम, यानी कि आज भी आप देखें ना, कौन से भी मल्टीनेशनल कंपनी का काम चलता है वो सिस्टम्स मैनेजमेंट पे चलता है, कि वो कोई एक आदमी को अहमियत नहीं रहती, वो जो सिस्टम है उसकी, यानी कि उसकी वो चौकट में वो आदमी को रहना पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा हो। तो ये सिस्टम्स जो है वो सभी को अच्छा चलाती है, यानी कि लोगों का सुख, लोगों का स्वास्थ्य, लोगों का भविष्य भी अच्छे सिस्टम पे निर्भर करता है। इसलिए शिवाजी महाराज ने पूरी जिंदगी में अहमियत दी है, वो सिस्टम को दी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 35 वर्ष के करियर में 7 बरस उन्होंने मिलिट्री, वॉट एवर मीन्स दी प्रिपरेशन ऑफ वॉर, एक्चुअल वॉर, उसके परिणाम निभाना वगैरह वगैरह, इसमें 7 बरस है। लेकिन बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सिस्टम में सेट करने में उन्होंने 28 बरस दिए, यानी कि 1:4। एंड दिस इज विजनरी लीडरशिप। तो ये जब अभी तो उनके हेड जो एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड कोई और थे या महाराज ही करते थे? नहीं, उनके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य जो थे तो वो पेशवा थे। पेशवा इज ए फारसी वर्ड, यानी कि आज के जमाने में और पॉलिटिकल नोमेनक्लेचर में आज हम उनको प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। अच्छा। तो वो मोरोपंत पिंगले उनके पेशवा थे और वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज थे, और यानी कि ऑल डे टू डे एक्टिविटीज, लेकिन फाइनल अथॉरिटी वाज ऑलवेज वेस्टेड इन हिमसेल्फ, यानी कि फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट शिवाजी। ओके। और फिर अभी शायद ये सवाल हमने ले लिया है, बट फिर भी who was he in constant battle with and who were his enemies? एंड उन्होंने कितने साल राज किया है? एक ये सवाल हमारे एक कियारा लाख ठीक है, से आया है, तो हाँ कियारा लाख बिल्कुल। ने पूछा है, तो प्लीज आप बता दीजिए। हाँ, उनका यानी कि शत्रु तो 9 थे, यानी वो पहले ही मैंने बता दिया आपको, यानी कि मुगल थे, आदिल शाही, कुतुब शाही, यानी कि सिद्दी, यानी कि ऑफ जंजीरा, देन पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, यानी कि और छोटे मोटे वो मराठों में जो कोई चिफ्टन्स होते थे वो भी उनके खिलाफ बगावत वगैरह करते थे। ऐसे सभी को आप पकड़े तो 9 शत्रु उनके हमेशा थे। पूरी जिंदगी उन्होंने एक, क्या बोलते हैं कि जैसे कि आपण म्हणतो मराठीमध्ये की टांगत्या तलवारी खाली वगैरे, अंडर द हैंगिंग स्वॉर्ड, ही हैज टू लिव फॉर ऑल 35 years, यानी कि 1648 से 1680, यानी कि 32 बरस तक उनका अपना एक राज था। तब तक वो एक जागीरदार थे, लेकिन बाद में वो अपना एक राज उन्होंने स्थापित, कि स्वराज्य जिसको हम बोलते हैं, उसका उन्होंने स्थापना की, वो चला है अभी, यानी कि स्वराज्य का स्वराज्य भी उन्होंने बनाकर दिखाया। और ये 9 तो शत्रु थे, और हमेशा जो लड़ाइयां होती थी, यानी कि सबसे ज्यादा उनकी लड़ाइयां इनिशियली ही कार्व ए निश, यानी कि स्वराज कहाँ से तैयार किया, तो वो आदिल शाही को, यानी कि आदिल शाही में से ही कार्व द निश and he made a Raj office himself. And then the constant fight and the longest battle was with the Mughals. क्योंकि उनकी जिंदगी के बाद भी वो चलता रहा, because Mughals were the mightiest in India. Mughals were the mightiest, यानी कि आदिल शाही का उनका कोई मुकाबला नहीं था, आदिल शाही कुतुब शाही को मिला के उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन शिवाजी महाराज ने उनको
उनके खिलाफ हमेशा वो खड़े रहे, लड़ते रहे और अंत में उन्होंने उनको परास्त भी कर दिया। अच्छा, अभी जैसे शिवाजी महाराज का राज तो इतना बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ। उन्होंने क्या है वो कि उन्होंने उनका फाइनेंस बहुत, जो उनका पैसा था, बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया है, तो वो उन्होंने कैसे किया है? हाँ, तो वो एक इसमें है बात, तो उस टाइम का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, and which was the biggest industry? That was agriculture. Means about 95-96% was going to agriculture. यानी कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कर दिए, यानी कि उनके राज में कोई भी ऐसे 2-4 एकड़ भी जमीन जो थी वो ऐसे तो सभी को उपजाऊ बनाते थे, यानी कि अंडर प्लांटेशन उनको लाते थे, यानी कि उन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स कर दिए। ये एक दो बातें हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर जो सभी का, यानी कि वो एक नींव थी, यानी कि जस्ट लाइक अ बैकबोन ऑफ एनी स्टेट ऑफ दैट टाइम, एग्रीकल्चर वाज द बिगेस्ट बिजनेस। और उनमें क्या है कि ये जो जैसे मैंने बोला कि इन्वेंशन एंड इनोवेशन, ये जो था, यानी कि तीसरी एक बात मैं आपको बताता हूँ कि रिगार्डिंग टैक्स कलेक्शन मीन्स रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि हम शिवाजी महाराज को जब आप बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि किले, यानी कि इतने उन्होंने 360 किले बनाए वगैरह वगैरह। तो ये सभी जो किले हैं वो जो ट्रेड रूट्स थे उस टाइम के, उसके इर्द गिर्द ही ये किले रहते। इसकी खूबी क्या थी, इसका कारण क्या था, तो जो भी माल यानी कि भारत से हिंदुस्तान से बाहर जाता था, बाहर से हिंदुस्तान में आता था, वो सब ये ट्रेड रूट से आता जाता था, तो वो उस पे ऑक्ट्रा है, यानी कि वो टैक्स जो उनको मिलता था। तो इसीलिए उन्होंने सभी किले ये ट्रेड रूट्स के इर्द गिर्द लगाए थे। और वो क्यों लगाए थे, यानी कि आप उनकी सोच देखिए, अकलमंदी देखिए, इसके लिए मैं उनको प्रज्ञावान भी बोलता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है कि वो खाली शिवाजी महाराज को मालूम थी, उनके शत्रुओं को भी ये मालूम थी। लेकिन शिवाजी महाराज का तरीका देखिए काम करने का, वो क्या बोले कि अरे हम भी जमीन पे रहे तो हमारे सभी जो शत्रु है वो ताकत में हमसे कोई 2 गुना, कोई 4 गुना, कोई 10 गुना बड़ा है, तो जमीन पे रहते उनसे लड़ाई जब अगर हमारी हुई तो उसमें हमको नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। तो ये क्या बोले कि ऊपर से जो क्या होता है कि आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है, लेकिन किले पे जाए तो आपको बहुत बड़ा इलाका नजर में आता है, तो वो कहाँ से आता है, जाता है, कब आता है, कब जाता है, दोनों का पता चलेगा। और ये जमीन पे जो अपने सभी शत्रु जो बैठे हैं उनको बगल देके इधर उधर से जाके हम वो जा सकते हैं, टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और पैसा भी सुरक्षित रखने के लिए फिर से किले पे जा सकते हैं। और ये जमीन पे लड़ने का शत्रु को मौका नहीं देंगे। टैक्स यानी कि इवेजन ऑफ टैक्स के लिए हम ट्रेडर्स को कोई यानी कि रियायत नहीं देंगे, कोई उनको मौका नहीं मिलेगा। और अपने लोग जो है उनकी जान की भी सुरक्षा रहेगी और जो पैसा मिलेगा उसकी भी सुरक्षा रहेगी, उसके लिए किले। यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हम जो बोलते हैं वो शिवाजी महाराज की विशेषता है। यानी कि जो गुरिल्ला वॉरफेयर है वो इसी का ही है कि उसमें लोगों की भी जान बच जाती है, उसमें पैसा भी कम खर्चा होता है, टाइम भी कम खर्चा होता है। अगेन टाइम इज इक्वल टू मनी, अगेन द एफर्ट्स इक्वल टू मनी, and everything if you calculate then you can calculate in terms of money. So he was always calculating all the things and यानी कि कम से कम एनर्जी इंप्लॉय करो और ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा कमाओ, ये उन्होंने हमेशा करके दिखाया। यानी कि आदमी वो भी आप लेके, यानी कि जैसा कि मैंने बोला आपको कि वो कौन थे, यानी कि पेशवा थे तो मोरोपंत पिंगले थे, उनको हाईएस्ट सैलरी थी वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी तरफ से आज भी हम बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के फील्ड में तो होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी कि वो मोरोपंत पिंगले से उन्होंने क्या क्या काम करवा लिए, यानी कि उनको मैक्सिमम सैलरी तो दी लेकिन काम क्या करवाया, यानी कि पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनसे करवाया। यानी कि सभी वो यानी कि रेवेन्यू है ये वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि जो करस्पॉन्डेंस है, रिकॉर्ड्स है, सभी उन पे एक नियंत्रण रहता। हाँ बाकी भी लोग थे, अकेला आदमी तो कुछ करता नहीं, लेकिन ये था। दूसरा, उन्होंने उनसे लड़ाइयां भी लड़वाई। यानी कि आप देखें कि जैसा कि अफजल खान की लड़ाई का जिक्र किया, उसमें ये जो ट्रेडिशनल मराठा वॉरफेयर था वो अफजल खान की लड़ाई उस किस्म की लड़ाई है, उसमें भी मोरोपंत पिंगले है, यानी कि ही वॉज लीडिंग द इन्फेंट्री at that time. Again, he was also involved in the open battlefield war of Saler. यानी कि आप मैग्नीट्यूड आप समझ सकेंगे, यानी कि डिटेल्स में बता दूंगा तो पूरे डे लाइट यानी कि सनलाइट में, यानी कि दोपहर में ये लड़ाई शुरू हुई। यानी कि आप देखिए संख्या कितनी थी,
मुगलों के पास 60,000 की सेना थी, मराठाओं की सेना 40,000 की थी, और एक ही लड़ाई में 6 घंटे में 10,000 लोग मारे गए। और दिस वॉज द फर्स्ट ओपन बैटलफील्ड वॉर बाय द मराठास, और उन्होंने मुगलों को परास्त किया। यानी कि पहली जो शुरुआत थी वो गनिमी कावा की लड़ाई में, वहां भी मोरोपंत पिंगले है। जो प्रतापगढ़ की लड़ाई जो हम बोलते हैं अफजल खान की, वो प्रतापगढ़ का निर्माण भी मोरोपंत पिंगले ने किया था। राजगढ़ के निर्माण में भी उनकी भूमिका रही थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे, और बाकी भी सभी ये चीजें हैं वो यानी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो सभी काम है उन्होंने एक ही आदमी से करवा ली। यानी कि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। वेरी ट्रू। जैसे कि अभी किलो का विषय आया ही है, तो तानाजी मालुसरे को हम कैसे भूल सकते हैं? तो हाँ, उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमें बताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिंहगढ़ एक यानी कि क्या बोलते हैं कि उनके बहुत कलेजे के करीब था। यानी कि जिजाऊ साहब और शिवाजी महाराज को ये हमेशा से, यानी कि जब से वो यहाँ पुणे जागीर का काम देखने आए, यानी कि 1636 में, तब से ये बहुत इनका यानी कि हमेशा उनका दिल धड़कता रहता था सिंहगढ़ के लिए। और वो सिंहगढ़ की एक विशेषता ऐसी है यानी कि किला तो बहुत अच्छा है, बेला किला है, डिफिकल्ट फोर्ट्स, वन ऑफ द डिफिकल्ट हिल फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन फिर भी ऐसा हो कि वो आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। इसके लिए एक जो उनके दिल में हमेशा एक बहुत बड़ी यानी कि जिद रहती थी कि अरे सिंहगढ़ कैसे भी वो हमारे साथ आना चाहिए। उसका पुराना जो नाम है कोंडाणा है, कोंडाणा या सिंहगढ़, लेकिन दोनों नाम प्रचलित थे। ऐसा नहीं है कि तानाजी के बाद में उसको सिंहगढ़ बोला जाने लगा। यानी कि वो भी एक गलत फहमी है लोगों के मन में कि अरे वो सिंह जैसे लड़ाकू यानी के सरदार थे और वो इस लड़ाई में मारे गए, इसलिए शिवाजी महाराज ने उस किले का नाम बदला और कोंडाणा से सिंहगढ़ बना। ऐसी कोई बात नहीं, उसके पहले से भी सिंहगढ़ नाम था, कोंडाणा भी था। तो ये किला जो उस वक्त जब यानी कि तानाजी मालुसरे आए थे उनको मिलने राजगढ़ पे, तो ऐसी बात हुई थी कि उन्होंने अपने बच्चे की सगाई तय की थी, शादी का निमंत्रण देने के लिए वो शिवाजी महाराज के पास आए। और उस वक्त वो राजगढ़ पे थे और राजगढ़ से सिंहगढ़ दिखता है। तो ये जिजाऊ साहबा ने तानाजी को बोला ऐसी बात है कि आपस में चर्चा करते करते वो बात निकल गई और बोले कि वो बहुत दुख लगता है कि वो हमारे पास नहीं है, यानी कि अभी वो चला गया है, कुछ बरस पहले अपने पास था। तो ये तानाजी ने आगे आके बोला कि माँ साहबा आप बिल्कुल यानी कि उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं वो कब्जा करके आपको वापस दिला दूं। लेकिन जिजाऊ साहब तो एकदम, उनके दिल में ऐसी कोई तमन्ना नहीं थी कि वो तानाजी जाए और वो ले ले, क्योंकि अभी उनको भी मालूम था, दावत मिल गई थी, वो निमंत्रण मिल गया था, तो उनको मालूम था कि अरे तानाजी तो उलझे हैं अपने घर की ये घर गृहस्थी या शादी वादी के चक्कर में, तो अभी तो उनको बताने का सवाल ही नहीं था। लेकिन इनका आपस में कितना प्यार था, और एक किसके क्या बोलते हैं कि सबवेयर में सभी को लगता था कि अरे ये शिवाजी शाहजी भोसले का ये राज नहीं है, ये हमारा भी है। स्व यानी कि सभी को ऐसा लगता था कि स्व यानी कि ये मेरा राज है। तो तानाजी ने जिसे बोल दिया अरे वो हो जाएगा, शादी तो कैसे भी हो जाएगा, उसमें क्या है, वो ऐसा करता हूँ कि मैं पहली ये क्या बोलते हैं कि ये सिंहगढ़ आपको जीत के देता हूँ। और उन्होंने अपना यानी कि जो वचन दिया था उन्होंने निभाया। उन्होंने बहुत इसमें ये क्या आजकल हम बोलते हैं कि रेकी की, यानी कि प्री प्रिपरेशन एफर्ट्स वगैरह किए, कहाँ से चढ़ाई करे, क्योंकि वो मावलाओं की या ऐसे जो सरदार थे शिवाजी महाराज के, मैंने कहा तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक है, कोंडाजी है, नेताजी है, बहुत सारे नाम हमको मालूम है। तो उनकी खासियत क्या थी कि वो कुछ ऐसी तरकीब लगा के किले लेते थे कि जिसकी दुश्मन को कभी कल्पना ही नहीं आ सकती। तो इसलिए उन्होंने ये खोज निकाला कि यहाँ एक कमी है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत कम रहते हैं। तो वहां से वो उसके बोले कि वो उस चोटी से हम ऊपर जाएंगे और फिर लड़ाई करके वो किला अपने यानी कि मिला लेंगे, जीत लेंगे। तो ये उन्होंने बहुत दफा ये प्री प्रिपरेशन यानी कि रेकी बोलते हैं, वैसे रेकी की तानाजी ने। और एक जगह उनको मिल गई कि अरे यहाँ रात में भी कोई यानी कि पहरा वगैरह नहीं होता, तो हम वहां से ऊपर जाएंगे और दोनों तरफ से हमला करेंगे। यानी कि एक जो दूसरा भी दरवाजा है सिंहगढ़ का, वहां से तानाजी के भाई वहां तैयार थे कि यानी कि जैसे तानाजी ऊपर से यहाँ से चढ़ाई करे वो वहां से चढ़ाई करे। तो ये प्लान था, तो उसके मुताबिक तानाजी ने सभी किया और वो ऊपर पहुंच गए। और ऊपर जाने के बाद उन्होंने लड़ाई की,
वहां उदयभान राठौड़ नाम का एक राजपूत किलेदार था, उनसे उनकी खुद की लड़ाई यानी कि 1-to-1 फाइट हुई, यानी कि दुर्भाग्यवश उस लड़ाई में दोनों भी मारे गए, तानाजी के हाथ से वो मरे, उनके हाथ से वो ये भी मर गए, यानी कि सेनापति चल बसा। लेकिन उनका जो भाई था सूर्याजी मालुसरे, उन्होंने आखिरी दांव पे यानी कि आखिरी क्षण में एक सेनापति का दायित्व संभाला और उन्होंने सभी को बोला कि अरे अपने सूबेदार यानी कि तानाजी मालुसरे वो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, अपना उद्देश्य क्या है कि ये किला जीत लेना, तो लड़ो। और उन्होंने जो एक वो रस्सी बांध के रखी थी, तो उन्होंने वो रस्सी काट डाली कि वो बोले कि अभी लड़ना है और मरना है, यानी कि आप लड़ो या मरो, करो या मरो, ऐसा जो बोलता है डू और डाई, ये ऐसी सिचुएशन सूर्याजी मालुसरे ने तैयार की। तो बाद में भी यानी कि जैसे कि तानाजी यानी कि मर गए उसमें, तो मराठा को भी एक अलग जोश आ गया, यानी कि अभी इसका बदला ले लेंगे। यानी कि फौज उनके पास कितनी थी, तो 600-700 होगी, लेकिन मुगलों की फौज कितनी थी, तो करीबन 2500 उनके पास फौज थी। लेकिन वो इतना मोटिवेट हो गए और उनपे इतना एक खून चढ़ा कि अपने सूबेदार की मौत इसके हाथ से हुई है, तो अभी उनका बदला लेते ही है। थोड़े बहुत ऐसे लोग थे कि वो जो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी सूर्याजी ने संभाल लिया था। तो वहां बाद में एक बहुत घमासान लड़ाई हुई, लेकिन फिर भी क्या है, उनका भी सरदार चला गया था उदय भानु, यानी कि तानाजी ने अकेले के दम पे यानी कि मार्ग भी खोजा था, ऊपर पहुंच भी गए थे, उनके सरदार को भी मार डाला था, तो 50% क्रेडिट वॉज विद तानाजी मालुसरे, और बाकी जो काम है बाकी वे सेना ने अपना पूरा कर दिया और अपना वादा निभाया उन्होंने। और ये जो यानी कि वचन जैसे दिया था जिजाऊ साहिबा को, ऑफकोर्स उसमें उनकी जान गई है, बहुत बुरी चीज है, लेकिन अभी की लड़ाई है और क्या इत्तेफाक से कुछ भी होता है, योगायोग की बातें होती है, लेकिन ये अपने दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद भी उन्होंने अपना वचन निभाया और एक बहुत यानी कि क्या बोलते हैं कि शेर जैसा आदमी और शेर जैसा बहुत मजबूत किला, ये यानी कि एक तो आदमी गंवाना पड़ा, लेकिन उसके बदले में शिवाजी महाराज को इतना बड़ा किला भी मिल गया। और उनके जिजाऊ साहब की जिंदगी के हमेशा तमन्ना रहती थी कि यार कैसे भी कुछ जो किले थे उनके वो दिल के बहुत करीब थे, तो ये भी सिंहगढ़ उसमें था। दोनों को बहुत दुख हुआ, स्वाभाविक बात है। वो खुद गए भी और उन्हें बाद में उनके फैमिली का भी उन्होंने सभी जो रिहेबिलिटेशन बोलता है वो भी कर दिया। सूर्याजी मालुसरे को तानाजी का उन्होंने पद भी दे दिया, उनको जागीर और उनकी यानी कि फैमिली का जो सभी एक जिम्मा है वो शिवाजी महाराज ने अपने सर पे ले लिया, जिजाऊ साहब ने भी ले लिया, सभी को तसल्ली दी और जिंदगी भर उन्होंने उस फैमिली का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा कि ये अपने शब्द के लिए और अपनी इच्छा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो ये कभी शिवाजी महाराज हो या जिजाऊ साहब ये कभी भूले नहीं। और एक अनोखा मेल था उन लोगों में, यानी कि सभी का ध्येय एक था, काम एक ही दिशा में करते थे, एक ही इच्छा से यानी कि प्रभावित होकर करते थे। तो ये अपने देश के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में भी गया। वही उम्मीद है गड कि आला लोगों पण का समाधान हो गया होगा। गड आला पण सिंह गेला, हे गड आला पण सिंह म्हणजे आम्ही लहानपणापासून बचपन से हम सुनते आए हैं ये शब्द कि गड आया बट सिंह गया। तो लेकिन थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स। अरविंद जी, हमारे पास अभी टाइम बहुत कम रहा है, आप लास्ट क्वेश्चन ले लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा अभी। तो बस आखिरी क्वेश्चन और उसके बाद हम आपसे एक संदेश चाहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन है कि शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का क्या हुआ? शिवाजी महाराज के बाद में उन्होंने तो स्वराज का निर्माण किया, और शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई, यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज, बाद में संभाजी महाराज के लड़के शाहू महाराज, यानी कि फ्रॉम द सातारा फैक्शन ऑफ मराठा डायनेस्टी, देयर आर 2 फैक्शन, सातारा एंड कोल्हापुर। सभी लोगों ने बहुत अच्छा पराक्रम किया और खास करके उत्तर में उन्होंने बहुत अपनी यानी कि शमशेर की यानी कि तेवर दिखाए, पूरे दुनिया को, मुगलों को भी दिखाए। इतना था कि मुगल बादशाह जो था, यानी कि सभी को मालूम होगा या 1-2 दिन में ही उनका जिक्र आया था, महादजी सिंधिया, यानी कि आज जी भी उनके वंशज जो सेंट्रल मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, यूनियन मिनिस्टर है वो। तो ये महादजी सिंधिया और बाकी को लोग, नाना फडणवीस का भी जिक्र होना मांगता है, बहुत सारे, होलकर है, पवार है, गायकवाड़ है, भोसले है फ्रॉम नागपुर, और बाकी बहुत सारे सरदार, उन्होंने मिलके यानी कि आज जो अटक से कटक तक
यानी कि मराठा, यानी कि इन अ नटशेल मैं बताता हूं कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 17 and 18 centuries, 2 centuries are known as the centuries of Maratha. 2 centuries, 17th and 18th. 17th में शिवाजी महाराज खुद और 18th में उनके वारिस। तो ये सब है कि इतना हुआ था कि यानी कि मराठास वेयर कंट्रोलिंग 2/3 पार्ट ऑफ द देन ब्रिटिश इंडिया। सो आज भी आप देखें तो अटक कहाँ है? पाकिस्तान में। और कटक कहाँ है? तो ओडिशा में या ओडिशा बोले, अभी उन्होंने चेंज किया, ओडिशा किया है। तो यहाँ तक मराठाओं ने लड़ाइयाँ की। मैं कटक का हूं। All this territory was directly or indirectly controlled by them. So that was the speciality of। और मुगल बादशाह को भी उन्होंने अपना एक छोटा सा सरदार बना लिया था। और ये बाद में ऐसा देखिए महादजी सिंधिया की कार्यकाल में कि 18 बरस तक मुगलों के निशान के साथ साथ मराठाओं का निशान भी दिल्ली के किले पे, लाल किले पे वहां फड़कता था। दिस वॉज दी, यानी कि क्या बोलते हैं कि मराठाओं ने क्या करके दिखाया। तो 2/3 ऑफ ब्रिटिश इंडिया, व्हाट इज नोन एज, वो उनके कब्जे में था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये मराठा साम्राज्य का क्या हुआ। तो ये एक्चुअली महाराष्ट्र के ऊपर जितना भी बोला जाए वो बहुत कम है, लेकिन हमारा वक्त हमें बता रहा है कि अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पे रोकना पड़ेगा। अरविंद जी, अप टू यू। सर आपके लिए, आपके इस टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे तरफ से, वैशाली जी की तरफ से और पूरे विश्व हिंदू परिवार की तरफ से। बस हम आपसे ये छोटा सा संदेश चाहेंगे, आप हमारे आज के यूथ को दे दीजिए कि छत्रपति शिवाजी से मतलब हमको क्या सीख के फॉलो करना है जो कि हमको आगे बढ़ने में सहायता करे हमारी। कुछ बताइए सर, आखिरी संदेश ये। एक तो जो है यानी कि सभी के लिए वो समान रूप से लागू होता है, वो तो है कि वेरी गुड और द बेस्ट मॉरल कैरेक्टर। यानी कि शिवचरित्र की नींव क्या है, तो उनका सबसे अच्छा या बेस्ट मॉरल कैरेक्टर, ये उनकी नींव। और मैं एक ही थोड़ा यानी कि एक ब्रिटिशर को मैं यहाँ कोट करता हूँ, सभी चीजों का पता चल जाएगा। यानी कि हमारा जो आखिरी जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, यानी कि आज का जो संरक्षण मंत्री है, रक्षा मंत्री हम बोलते हैं, अभी राजनाथ सिंह साहब वो रक्षा मंत्री है, उस पद पे जो था वो ब्रिटिश था। यानी कि 1947 में जब वो हमारी आजादी हो गई या ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जो भी कुछ हुआ, तो ये फिलिप्स मैसन ने ऐसा बोला था शिवाजी महाराज के बारे में। यानी कि पूरे उन्होंने एक जायजा लिया अपने हिस्ट्री का और उन्होंने बताया कि यहाँ मुझे सबसे, यानी कि 5,000 रूलर्स में मुझे सबसे प्रभावित किया 3 राजाओं ने या बादशाहों ने या रूलर्स, यानी कि सत्ताधारी बोले। तो तीसरे नंबर पे उन्होंने रखा था तो वो सम्राट अकबर को रखा था, यानी कि ब्रिटिश एक बोल रहा। दूसरा उन्होंने रखा था तो महाराजा रणजीत सिंह जी की भी एक खासियत है कि जो ब्रिटिशों को भी कभी पॉसिबल नहीं हुआ, वो उन्होंने किया था कि उन्होंने काबुल पे अपना राज जमा लिया था, रणजीत सिंह ने, सिखों का राजा। और उन्होंने बोला कि 1 नंबर पे क्यों कौन आता है, कि वो बोले कि शिवाजी महाराज आते। क्यों? उनके कारण भी उन्होंने बताया कि वो बोले कि ये जो सेना जो है वो पेट से चलती है, यानी कि क्या, सैलरी शुड बी पेड ऑन टाइम, यानी कि सैनिकों को, आर्मी को। तो ये बोला था कि ये चीज शिवाजी महाराज ने जिंदगी भर निभाई। 35 बरस में 1 महीना या एक भी सीजन ऐसा नहीं गया कि हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ। और जो भी सैलरी थी, तनख्वाह थी या और भी कुछ बेनिफिट्स या क्या पर्क्स भी सब बोलते थे, उस जमाने भी थोड़े थे, तो ये भी कभी भी शिवाजी महाराज हिसाब में चुके नहीं, कभी भी वो यानी कि डिफॉल्टर नहीं थे पेमेंट्स में, एक चीज। और दूसरा कि राष्ट्रवाद क्या चीज होती है वो सिर्फ उनको ही मालूम था, यानी कि वो 1 नंबर के राजा क्यों है, रूलर क्यों है, तो राष्ट्रवाद क्या चीज है उनको मालूम था। और उनके जो रिमार्क्स है कि क्या, यानी कि एक चरित्र का मूल्यमापन उन्होंने किया है, वो बोले कि ये आदमी यानी कि शिवाजी महाराज और 5 बरस जिंदा रहते तो हमको यहाँ राज करने का मौका कभी नहीं मिलता। आप देखिए जो जिन्होंने ब्रिटिशों ने 90-100 बरस तक राज किया, वो ये रहस्य बता रहे हैं। और दूसरा जो सभी ने ध्यान में रखना है, यूथ ने खास करके, तो ये दूसरी बात उन्होंने बताई कि इस आदमी को यहाँ के लोग भूल गए, इसलिए वो परतंत्र में गए,
यानी कि उन्होंने अपना स्वराज, अपना राज, अपना स्वातंत्र्य ये सभी गंवा दिया। तो इसीलिए आज भी शिवाजी महाराज की जय रुकना पसंद करो। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं।